بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا ڈرائیور روز مجھے راستے میں بسکٹ کھلاتا جسے کھانے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن جب اگلے روز ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے گیا تو میں نے بسکٹ نہ کھایا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، جیسے جلدی میں ہو۔ آج امی نے ناشتہ دیر سے بنایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور بھی گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے التجائی انداز میں کہا، آج بسکٹ کھا لو، اچھی جگہ سے لایا ہوں، دیکھو بہت مزے کا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، نہ جانے اس بسکٹ میں ایسا بھی کیا تھا، مجھے کھاتے ہی چکر آنے لگ جاتے تھے۔ ڈرائیور زبردستی کہنے لگا کہ بس ایک بسکٹ کھا لو، بہت مزے کا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل کیا میں گاڑی سے اتر جاؤں اور زور سے آواز لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ڈرائیور کچھ غلط کر رہا ہے۔ ڈرائیور تو بس مجھے کھانے کے لیے بے تحاشا منت کر رہا ہے۔ میں نے بسکٹ نہیں کھایا۔ گھر آنے پر میں نے امی کو بتائے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو میں آرام محسوس کر رہی تھی، جو اکثر بسکٹ کھانے کے بعد نہیں کرتی تھی۔ میرا پورا دن سر چکراتا رہتا تھا اور مجھے سو کر اٹھنے کے بعد بھی سر بھاری محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ سب کچھ بسکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن مجھے یوں محسوس ہوا میرا ڈرائیور گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے نکل کر خود چلنے لگی۔ اچانک سے مجھے کلائی کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ میں نے آواز لگانا چاہی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے لگا۔ بسکٹ کھاتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلی تو امی نے کہا، ڈرائیور تمہیں گھر لایا ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میرے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ چل رہا تھا۔ سب ویسا تھا یعنی کہ ڈرائیور نے میرے ساتھ کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے اس بارے میں امی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا ڈرائیور نے مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے خود بھی یاد نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کر لی، لیکن اسکول جانے پر ڈرائیور میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگا، بی بی صاحبہ آج آپ اسکول نہیں گئی؟ میں نے انتہائی غصے میں امی کی طرف دیکھا، ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ڈرائیور آواز سے مجھے وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک بسکٹ لایا ہوں۔ میں تجسس اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کو تیرنے لگی۔ پھر میں نے کہا، مجھے ایک ایک چیز تو نہیں یاد، مگر تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ کل آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ میں نے کہا۔ ڈرائیور نے بہت عام لہجے میں کہا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے نہ بولا۔ صبح صبح کمرے میں لیٹے رہنے سے مجھے بھوک لگنے لگی تھی، اس وجہ سے میں نے وہ بسکٹ لے لیا۔ یہ سوچے بھی خیر اس میں کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈرائیور انکل نے وہ بسکٹ مجھے بہت پیار سے دیا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے میں نے وہ بسکٹ کھانے کی غلطی کر لی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں نے ڈرائیور کی آواز سنی، جو میرے بارے میں کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کسی کو نہ بتا سکی۔ امی نے مجھے آواز لگا دی، بیٹا میں تمہیں دوائی دے رہی ہوں، لنچ کے بعد کھا لینا، تمہارے لیے ڈاکٹر سے خاص طور پر لائی ہوں تاکہ تم دیکھنے لگو۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے ایک بار پھر سے گاڑی روکی۔ اس بار تو میں نے ٹھان لی تھی ڈرائیور کیا کہتا ہے آخر پتہ لگاؤں گی۔ گاڑی پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی جگہ پر ساکن تھی، اس لیے اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلنے لگی، کم سے کم یہ تو پتہ لگا سکوں آخر میں ہوں کس جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جب کہ میں اسے نہ دیکھ پاتی ڈرائیور نہ آواز صحیح آ رہی تھی، نہ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں کون سی جگہ پر ہوں، لیکن پتہ لگانا بہت ضروری تھا آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں سے دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے۔ اس دن شاید کچھ ہوا تھا، اس دن بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے یاد بھی نہیں تھا، تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں تو کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نابینا کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا جس طرف میں بھاگوں گی ڈرائیور ہوگا بھی کہ نہیں، اور مجھے کہیں دیکھ بھی نہیں لے وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔
ड्राइवर की आवाज़ करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस होता था कोई और भी इससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ समझ न आया। मैं वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, इधर उधर से सहारा लेकर। मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर आ गया। कहने लगा, आपकी सांस क्यों फूल रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं। ड्राइवर कहा, इतनी देर क्यों हो गई आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। नहीं बीबी साहिबा, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार ही होते हैं। ये कहते ही उसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से चिड़मड़ की आवाज़ आने लगी। साथ ही मुझे उसने बिस्कुट पकड़ा दिया। इसकी आवाज़ से, इसकी बात करने से, अंदाज से ऐसा कहीं भी नहीं होता था इसने नशा किया हो। लेकिन इसकी इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। कहीं ऐसा ना हो ड्राइवर ने झूठ बोला हो, क्योंकि जिस जगह ड्राइवर मौजूद था हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, सिगरेट की बू भी आ रही थी। इस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। वो शीशा तो नहीं पीता होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। क्यों हर गरीब अपना काम बनाने के लिए यही करता हो, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आ सकते थे? मैं खुद ही दिल में सवाल करती, खुद ही जवाब निकाल लेती, लेकिन वो इधर किसी से बात भी मलबूस कह दिया। बीबी साहिबा, कहाँ गुम हो? आपको भूख लग रही होगी ना, ये बिस्किट खाएं। आप मुझे बिस्किट क्यों देते हैं? पर आखिर मेरे मुंह से निकल गया। इस दिन जब मैं बेहोश हो गई, तब आपने मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी ना। मुझे बहुत हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने बदतमीज़ी कब की? टूटे फूटे अल्फाज में खुद हकीकत मालूम नहीं थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अचानक से उसने बात बदली। आपको कैसे पता चला? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया। इसका मतलब बिस्किट में ज़रूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। इसकी आंखों में बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? ड्राइवर ने हैरानगी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई दी थी, रोज़ खाती हूँ, मगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत सोच रही थी। ड्राइवर के बारे में वो कितना दिल का अच्छा था। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। ड्राइवर से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरा सर चकराने लगा था। मेरी हालत देखकर ड्राइवर परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी ड्राइवर परेशान नहीं हुआ था। और जल्द अज जल्द गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। इसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे कोई होश ना रहा। मुझे बाबा छोड़ने जाते, बाबा लेने जाते। मैंने बाबा से पूछा, ड्राइवर कहाँ है? बाबा ने कहा, इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे हैरानी हुई, कैसे पहले जैसा हो गया। पहली बार था, ड्राइवर ने मुझे 15 मिनट में घर छोड़ दिया था। साथ ही उसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया था। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा। आखिर मैंने पूछ लिया, अंकल आप मुझे 15 मिनट में कैसे छोड़ देते हैं और मुझे बिस्किट भी नहीं पूछते? तो ड्राइवर ने बात बना ली कि बेटा, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, आपके बाबा ने कहा था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी स्कूल आपको पहुंचा देता हूँ। बिस्किट लेने का टाइम नहीं होता। मुझे ड्राइवर की इस बात से कोई तसल्ली नहीं हुई थी। इस साथ अपने दोस्त को लेकर जाऊंगी, वो चुपके से सब देख लेगी। अब मैंने ठान लिया था, मैं अपने मामले का पता लगा लूँगी। अगले कुछ दिन मैं अपनी दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती, ताकि इतना वक्त ड्राइवर को पता लगा सकूँ, पता चल सके क्या वाकई गाड़ी में लगता है, वाकई कुछ गलत कर रहा है। इन सब सवालों के जवाबों के लिए मैं अपनी दोस्त को ले गई। इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। ड्राइवर छोड़ने में देर लगाता, ना ही बिस्किट खिलाता। मुझे शक था ड्राइवर ने देख न लिया हो मुझे दोस्त को गाड़ी में छुपाते हुए। यूँ 1 हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन इस हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में वाज़िया फ़र्क समझ आया। ना मेरा सर चकराया, ना दर्द होता, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। ये सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी। बहुत सारे सवालों के जवाब, मुझे इन सब के जवाबात चाहिए थे। 1 हफ्ते स्कूल की छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि घर में बड़ी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी मेहमानों को बुलाया गया था। साथ ही घर में मौजूद बुआचन को भी, बाबा की खिदमत करने वाले ख़ास मुलाजिम भी बुलाए गए। ऊपर वाली मंजिल में अचानक से शोर सा मच गया, जैसे कोई लड़ रहा हो। ड्राइवर की आवाज़ से लगता था कि बस किसी को कत्ल करने की देर हो। सब ड्राइवर से पूछने लगे, आखिर वजह क्या है? इतनी देर में एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई, लेकिन ये थप्पड़ किसको पड़ा?
अब बाबा के चिल्लाने की आवाज़ आई, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? तुम्हें ज़िंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, तुम एहसान फरामोश आज मेरे घर पर बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो। वो गिरबान पकड़कर मुझे समझ आ गया, बाबा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था? मेरी समझ से बाहर था। मैं तो आंखों से अंधी थी, ना कुछ देख सकती थी। आपको कैसे सच बताऊं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ड्राइवर ने निहायत गुस्से से कहा, चुप हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई समझ बाबा की आवाज़ में शदीद गुस्सा भरा हुआ महसूस होता था। तुम जानते हो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो शबीर साहब? मेरे ख़ास मेहमान हैं, तुम्हें पता है हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। शबीर साहब के भाई ने अपना घर हमें दे दिया, इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, लेकिन तुम गरीब कहाँ जानो ये बातें। बाबा के मुंह से पहली बार ये ऐसी बातें निकली थी, शायद इसलिए क्योंकि शबीर अंकल के भाई समीर साहब जी ये इतने अच्छे नहीं हैं जितनी आप समझ रहे हैं। ये झूठा शख्स है, रसबुल्ले शाह के मज़ार पर चेली बेर बनकर बैठता था। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें गांव के सिवा हम जाने कहाँ देते हैं जो तुम्हें पता हो? बाबा ने तंज़ीह अंदाज में कहा। साहब जी, मैं अगर आपका सच बताऊं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज़ कुछ डरी हुई महसूस हुई। तेरा और क्या कहना रह गया है? तू क्या बोलेगा? अब बोल। बाबा तो जैसे गुस्से से पीले हो रहे थे, इनकी आवाज़ महसूस कर सकती थी। बाबा जितना गुस्सा कर रहे होंगे वो लाल हो गए थे। दरअसल बीबी साहिबा बिस्किट ड्राइवर की ज़बान लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दफ़ा हो जाओ, एक और लफ्ज़ ना कहना मुँह से। कुछ निकल तो नहीं रहा है डर के मारे। अब क्या कहोगे? जो तमाशा बनना था बन गया है। इस वक्त बाबा गुस्से में जब्त किए हुए थे, ऐसा महसूस हो रहा था बाबा अभी उसे मार देंगे। मैंने उसे कहा, रुक जाएं बाबा। बिस्किट क्या बताएं? क्या बिस्किट के बारे में आप बोल रहे थे? बीबी साहिबा, मैं जो आपको बिस्किट खिलाता था वो यही देता था, और जो मैं लेट छोड़ता था वो इसी की वजह से। मैं गाड़ी रोककर इसकी बात सुनने जाता था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए है? इसको बाबा गुस्से में और इजाफा हो गया था। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुने, ड्राइवर ने जल्दी से बोला। बीबी साहिबा के इलाज के लिए जाता था इस बाबे के पास। मुझे ये बिस्किट पे पता नहीं क्या पढ़ के देता था। कहता था इस बारे में घर वालों को ना बताऊं, वरना लड़की की जान को खतरा होगा। वो ये अमल रोज़ करवाता। एक दिन बीबी साहिबा ने बिस्किट नहीं खाया तो इस चेली बाबा ने मुझे कहा, आज 2 बिस्किट खिलाओ, वरना ना खाए तो ज़बरदस्ती मुंह में डालना, वरना तुम्हारी बीबी की आँख कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन उस दिन 2 बिस्किट खिलाने पर बीबी साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से बीबी साहिबा को इंतज़ार करना पड़ा। तब मैंने बीबी साहिबा की वो हालत दोबारा देखी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अगले रोज़ इस बाबा के पास बीबी साहिबा को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे वो बाबा नज़र ना आया। मैं इन लोगों के पास चला गया। वहाँ खड़े लोगों से मैंने कहा, तुम्हें पता है यहाँ एक बाबा होता है जो बिस्किट दम करके देते हैं, वो कहाँ है? सब मेरी तरफ देख कर कहने लगे, कौन बाबा? हम तो इधर किसी को नहीं देखा। जो भी दम करते हैं अंदर करते हैं। मुझे कुछ समझ न आया मैं क्या करूं। उस दिन के बाद मैंने ना ही बिस्किट दिया, ना ही बीबी साहिबा को देर से छोड़ा। आज मुझे ये डर नज़र आया तो मैं पहचान गया, ये वही बाबा है। किसी को भी ड्राइवर की मनगढ़ंत कहानी पे यकीन ना आया, लेकिन मुझे सब सच महसूस हुआ। वहाँ एक दिन पीछा कर रही थी तो मुझे धुआं महसूस हुआ। ये भी ड्राइवर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन किसे कर रहा है ये तो मैं ना देख सकी। मुझे पता चल सका, मुझे सच में इस बिस्किट से चक्कर आते थे। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सब ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे पकड़ा और कहने लगा, हिलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज़ शबीर अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पर बंदूक रखी हुई थी। घर के सब अफराद खौफजदा थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। अब जो आवाज़ आ रही थी वो शबीर अंकल की थी। तुम्हारा नुकसान चाहता था, क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा तुम्हारी वजह से। मेरे भाई ने ना हमसे पूछा ना कोई बात की, इतना बड़ा घर तुम्हें दे दिया। ये घर मेरा था, मैं चाहता था रहना यहाँ। तुमने बड़ी होशियारी से ये घर ले लिया है। फिर तुझे क्या मिला? नाबीना बेटी, फिर तो इसका इलाज करेगा।
बाबा तंज़ी अंदाज में शबीर अंकल बोले जा रहे थे। मेरा तो ख्वाब था, घर हासिल ना कर सका तो क्या तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। फिर तेरी बेटी नाबीना है इसे, और ऊपर से ड्राइवर अच्छा बेवकूफ़ है। ऐसे अच्छा मौका कहाँ मिलता है। शबीर अंकल मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया। मुझे महसूस हुआ मैं थोड़ी आगे को हो गई। बीबी साहिबा के बारे में एक अल्फाज भी नहीं बोलना। ये आवाज़ ड्राइवर की थी, लेकिन साथ ही कहीं जोर से नीचे किसी के गिरने की आवाज़ आई। अम्मी, बहन, भाई सब मुझसे लिपट गई। नीचे सीढ़ियों पे भागने की आवाज़ आ रही थी। अम्मी, मैंने परेशानी से कहा। मेरा ड्राइवर ने शबीर अंकल को नीचे धक्का दे दिया है। अभी बाबा भागे हैं, पकड़ने गए हैं शबीर अंकल को। इतने में पुलिस को कॉल कर दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस शबीर अंकल को ले गई। सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। इस पर बाबा के रोने की आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हारी गरीबी के ताने दिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद की। बाबा ड्राइवर को बोल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा फ़र्ज़ था। मुझे आज खुद भी महसूस हो रहा था जो कुछ था मेरी इज्जत ड्राइवर ने बचाई थी, और जान भी।